آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئیں، جنہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھیں اسی لیے ان کو باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہم، کیا آپ کو بچپن میں کچھ چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں سمجھا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچے پیدا کرنے والا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت کی شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے کہ میری ماں جو بھی کہیں ان کی بات ٹالنا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی میں کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی۔ میں وہیں بیٹھی رونے لگی، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رو رو کر دل ہلکا ہوا تو ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت عورت تھیں، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنی بھی بانجھ عورتیں آتی ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکیں یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں۔ رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد تمہارے گھر میں مانو خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر منہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس ڈاکٹرنی کا خیال ہوگا کہ میں تیرا مہنگا علاج کرواؤں، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی راحیلہ کو بھی اسی کے پاس لے کر گئی تھیں، اور رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے پاس چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانے نما گھر پر چلی گئیں۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کافی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو ابھی صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتا، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے وہ، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں،
कभी भी अपनी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और ख़बरदार उसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर करने के लिए सोना ज़रूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी चीज़ से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात ज़रूर देखे थे। उसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर मुंह में गोली रखते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो, मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। यूं ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ न कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स तकरीबन मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद मुझे शायद जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिले। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च ले आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ख़ुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाया हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सी दूर हैं, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त सुबह मुंह अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूँगी तो बाकियों का असर ज़ाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो अलल सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये न समझें कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रहीं। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक के नथनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब इन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराना शुरू की तो मुझसे रहा नहीं गया। गर्म गर्म राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल उछलकर हलक में आ गया। इन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ़ हैं। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देखकर वो घबरा गईं। बोली, खामोश होकर लेट जा, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। इन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था
उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की अगली तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गईं। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़ था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ इस अमल में शामिल है और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, क्या वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियाँ क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी बात सुन लूं, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं उनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात गौर से सुनो, आसिफ ने राजदाराना अंदाज में कहा। मेरी अम्मा को तो तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून हैं। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली न जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वो वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की ज़रूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनके सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गए आसिफ? मर्द बनो, तुम्हारी अकल को हो क्या गया है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसुदा वामिल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जहालियत में पड़ी है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसिफ ने इत्मीनान से कहा। मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया।
बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़िया मांगती, मगर इन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि इनकी मौत इंतहाई तकलीफ़ दे हुई। आलमे नज़ा में उनकी जान जैसे किसी कांटे पर अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कुछ शिरकिया अमल करूंगी। चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी।